حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا، یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا۔ سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا ہے جو جنازہ پڑھنے آیا۔ تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے گے۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرن دے مکھڑا میڑا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کر، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کر زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا، جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے میرے رسول کریم۔ پھر پڑھیے دروشی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ کی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟
10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है, पर मैं फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिज्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार काहे का? हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रख। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है। तो आज भी हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है। मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया, वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते, वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती? अर्ज़ की हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे, जूते का एक तस्मा बंद करता हूँ तो सोचता हूँ दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाएगी। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूँ कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती? वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई। हम बहुत सारे लोग हैं बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी, मैं कहता हूँ असल में ना ज्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। इसको समझे। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये इंशराह सदर अता फरमाया था कि मेरा दीन हक है, मेरा अकीदा हक है, मेरा नजरिया सच्चा है। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। फाज़िल बरेलवी फरमाया करते थे, मेरा सीना चाक करो, मेरा दिल निकालो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये वो बताया करते थे कि तसव्वुर की दुनिया में मैं जाता हूँ तो दिल पर कलमा लिखा है। यानी जिन लोगों ने इतना तय कर लिया हो ना, इतना। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए और आपको दस्त बहुत आ रहे थे, तो बज़ाहिर कैफियत ये हो गई कि उठ के खड़े होते तो मुकद्दस टांगों पे राशा तारी होता। तो तमाम सहाबा आपसे मोहब्बत करते थे। कुछ लोगों ने देखा तो रो दिए कि हजरत इस बीमारी में मुश्किल है, अब आप सेहत याब हो, महसूस ऐसे होता है। तो हजरत अली शेर खुदा मुस्कुराते चेहरे से फरमाने लगे, कमजोरी बज़ाहिर बहुत है और बीमारी की शिद्दत है, पर तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा वो किस तरह, आपको बड़ा यकीन है? फरमाने लगे, असल में मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली आप दुनिया से उस वक्त जाएंगे जब दाढ़ी खून से रंगीन होगी, तो मुझे तो शहादत मिलेगी, तलवार चलेगी, नेजा चलेगा, जख्म लगेगा, मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा। साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। जब आपको इंशराह सदर हो जाए ना, फिर दीन पे चलने का मजा आता है। वरना तो लोग दीन के कपड़े पहन के भी दुनिया इकट्ठी कर रहे होते हैं, दीन का नाम लेकर भी अपना कारोबार चला रहे होते हैं, चूंकि उनको ये तो समझ, अब बता तो रहे हैं वो। मुझे एक साहब कहने लगे, कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ये बताने के लिए ना पैसा बिल्कुल काम नहीं आता, ये बताने के भी पैसे लेते हैं, ये समझाने के लिए ना कि पैसा कोई काम नहीं, इसके भी पैसे ले रहे हैं। तो भाई जब आपको इंशराह सदर ही नहीं, तो फिर आप कोई किसी वक्त कोई मुलम्मा साजी तो कर सकते हैं, दीन पर बात नहीं कर सकते। ताउन का मर्ज फैल गया था बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग उसका शिकार थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के गले में भी और जुबान मुबारक में भी कुछ थोड़ी तकलीफ थी। तबीब को बुलाया गया तो उसने कहा आपको ताउन हो गया है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कुछ भी हो जाए मुझे ताउन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? फरमाने लगे, हुजूर ने दुआ बताई है, किसी मरीज को देख के पढ़ लो तो तुम कभी उस बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। मैंने पढ़ ली थी ताउन वाले को देख। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। यकीन कामिल की दौलत उन्हें मुयस्सर थी। आप यकीन करें, मैं उनके मुखालिफिन को भी दावत दूंगा, जिस वजद में उन्होंने लिखा है ना, जिस कैफ में उन्होंने लिखा है, जिस सुरूर में वो चले गए हैं, ये वही लिख सकता है जिसका सीना अल्लाह ने इखलास से भर दिया है। आला हजरत को यकीन कामिल था दीन पर, हुजूर की हर हर बात पर, नबी पाक के हर हर फरमान पर, कुरान मजीद की हर हर आयत पर। मैं उस दौर में रहता हूँ जिस दौर में लोग कहते हैं माज़अल्लाह सूद में गुंजाइश निकालो काम नहीं चलते,
खुदा के बंदे तुझे गलती लग गई है, मुसलमान का काम कारोबार से नहीं चलता, रब के फजल से चलता है। कारोबार वसीला होता है, असल तो अल्लाह अता फरमाते हैं। तो भाई जब तक आपका ये ज़ौक नहीं होगा, आपको जब तक ये इंशराह सदर नहीं मिलेगा, उतनी देर तक मजा नहीं आएगा। बेयकीन आदमी की कोई जिंदगी नहीं होती। कच्ची पक्की बातें कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, ठीक है कि नहीं ठीक। मैं दोस्तों से अक्सर एक बात किया करता हूं, मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को हमने जिंदगी में देखा है, सब कुछ है, कुव्वत फैसला कोई नहीं, और वो कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़े ही काम किए हैं तो मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा भाई यही गलती लग गई, कोई एक कर लेते ना कभी तो फायदा हो जाना था। आपने ज्यादा काम कर लिए तो ज्यादा करने से उलझ गए। तो इत्मीनान पैदा करें, यकीन पैदा करें, ये पहला सबक है आला हज़रत बरेलवी की जिंदगी का। दूसरी बात, वकानु यत्तकून, तकवा। फाजिल बरेलवी की हर तहरीर में तकवा छलकता है। आला हजरत मोहतात लिखते हैं, मोहतात, किसी जगह वो गैर मोहतात नहीं होते। आजकल ना लोग बोलने में, कहने में, लिखने में, समझाने में, गप्पे करने में गैर मोहतात हो गए। हमारे मिजाज के अंदर बाद ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिससे महसूस होता है कि ये गुफ्तगू शख्सियत से मैच नहीं करती। आपकी बुलंद बाला शख्सियत है, आपका कदकाठ है, आपके साथ गुफ्तगू का वो एक खूबसूरत अंदाज होना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत और ज्यादा निखरे। तकवा मोमिन की जिंदगी का हुस्न है। अगर आप गैर मोहतात हैं ना, आपके रवैये गैर मोहतात हैं, आपका अंदाज गैर मोहतात है, आपका बोलना, लिखना, कहना गैर मोहतात। तकवा कहते किसको है? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा मुत्तकी कौन होता है? फरमाया हुजूर पता तो आपको भी है, मेरे जिम्मे लगाया तो अर्ज किए देता हूँ। आप अर्ज करने लगे हुजूर किसी ने खुला लिबास पहना हो ना और तंग रस्ते से गुजरना हो और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो तो बंदा कैसे गुजरता है? तो हजरत उमर कहने लगे बस जरा कपड़े समेट के एहतियात से गुजर जाए ताकि वो झाड़ियों से उसके कपड़े उलझ ना जाएं। फरमाया बस हुजूर यही तकवा है जो जिंदगी में जरा दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियां हैं दुनिया में, जो जरा बच के निकल जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बच के बात की है। हमारे शुअरा गैर मोहतात बातें कर देते हैं, शेर कहते हैं ना जी, तो शेर व सुखन के लोग भी बड़े मर्जी के मालिक होते हैं। शुअरा से माजरत के साथ ये बाज़-औक़ात बात चीज़ों में एहतियात नहीं करते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी एक शायर ने आके अपना कलाम पेश किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी याद में सारी रात रोता हूँ, सारी रात तड़पता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ। आला हजरत फरमाने लगे वो शेर पढ़ के कि आपकी कैफियत तो ऐसी नहीं लग रही, रोने वाली, तड़पने वाली और सारी रात जागने वाली लग तो नहीं रही। कहने लगे नहीं ये तो शेर है ना। तो फिर आप बड़ी शफकत से फरमाने लगे हुजूर की बारगाह में आपने शेर भी कहना है तो सच और हक कहना है, ये सरकार की बारगाह है, आप इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो आप में पाई नहीं जाती। एहतियात का दरस दिया सारी जिंदगी उन्होंने। क्या कहा उन्होंने उन लोगों से जो हुजूर के बारे में कच्ची और कमजोर बातें करते थे? यही तो कहा कि ये बारगाह नबवी है, जरा होश से बोलो, यहाँ कोई ऐसा जुमला न कहो जो हुजूर की शायान शान नहीं। कोई ऐसा, मसलन एक शख्स ने आला हज़रत के सामने कहा शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी, तो फरमाने लगे खुदा के बंदे मेरी सरकार तो किसी को दबाने आई नहीं, हुजूर तो किसी को दबाने नहीं आए। फरमाया शेर यूं पढ़ो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जब कोई फिक्रा कहो ना, जुमला कहो, तो वो जचा तुला होना चाहिए, वो मियारी होना चाहिए, उसके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। वो हमारे यहाँ सलाम के शेरों में बड़ी मिलावट है। ये शेर पढ़े जाते हैं ना सलाम के, तो उनमें भी लोगों ने अपनी मर्जी कर दी है। यानी हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, ये तो किसी उस्ताद का शेर ही नहीं लगता। जो थोड़ा बहुत भी शेर व शायरी से लोग शगफ रखते हैं, असातिज़ा का शेर असातिज़ा का होता है, फन का आदमी फन की बात करता है। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, ये आला हजरत का शेर ही नहीं। आला हजरत का शेर तो ये है कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? यानी यहाँ से पढ़े वहां सुने या वहां ना, ये बात ही नहीं। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, और थोड़ा तवज्जो से सुनना, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब मैं थोड़ा बहुत शेर का ज़ौक रखता हूँ। अब मैं आपसे कुछ, मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है इसलिए कि आपको तकलीफ होगी। और भाई काने लाले करामत को भी समझना है। एक ये कान है,
एक कोयले की कान है, उस कान का पता है, कहते हैं यहाँ से कोयला निकलता है, यानी खजाने वाली कान। आला हजरत फरमाते हैं जो हुजूर के कान है ये करामत की कान है। ये क्या है? करामत की। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ से करामत के लाल निकलते, ये हुजूर की शान। बहुत सारे लोग ना हुजूर की तारीफ करते हैं, शेर कहते हैं, लेकिन महबूब की बंदा तारीफ करे ना, महबूब की, माँ सादी भी हो ना, सादी अम्मा, तो अम्मा की तारीफ में ना मुलम्मा साजी नहीं होती। बाकी किसी वक्त कोई बंदा मेरी तरह का थपकी थुपकी दे के तालिब इल्म से काम भी निकलवाता है कि चलो सबक याद कर लेगा, अम्मा की तारीफ सादी होती है, उसमें कोई मुलम्मा साजी। अम्मा जब कहती है ना मैं सदके जावा, तो ये लहजा वो किसी से उधार नहीं लेती, ये उसका जाती होता है। ये अच्छा चलो एक और बात भी करते हैं, आज मौजू तो नहीं पर चलो बात आ गई है। अब्बा जी नहीं कह सकते सदके बारी जावा, उन्होंने नहीं कहना, वो कह नहीं सकते ना बेचारे वाली साहब जो हुए। हालांकि सदके सारा ही अब्बा ही होता है, सारा दिन बाहर सदके होता है, काम काज करता है, पर कहता कुरान ने दो मोहब्बतें बयान की हैं, दोनों बाप बेटे की। इधर देखो मेरी तरफ, दो मोहब्बतें, बैठ जाए प्यारे भाई, दो मोहब्बतें बयान की हैं दोनों बाप बेटे की, हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये देखो ये दोनों मोहब्बतें बाप और बेटे की मोहब्बतें। ये कैसी मोहब्बतें? बाप ने लफ्ज नहीं अदा करने होते, उसने जुमले नहीं बोलने होते, कुछ मर्दाना वजाहत के तकाजे होते, पर ये कि जो वो प्यार करता है ना उसका भी अंदाजा कोई नहीं कर सकता। तो माँ बाप की जो तारीफ करते हैं बच्चे की, वो खालिस होती, असली वाली। आला हजरत बरेलवी बहुत एहतियात से, तकवे से अपने महबूब की तारीफ करते हैं, लेकिन लुत्फ भी सारा ही लेते हैं। यानी ये है ना कि शेरी ज़ौक नहीं पूरा हुआ, ऐसा भी नहीं, शेरी ज़ौक भी पूरा होता है और तकवा भी पूरा होता है। ये जरा अंदाज देखिए, वैसे मुनासिब नहीं मैं मेहमान हूँ कोई ऐसी बात करूँ जो दिक्कत हो। बाज लोग कहते हैं कि मुफ्ती का और मसाइल हल कराने वाले का, इन लोगों का महबूब नहीं होता, ये इल्ला माशाअल्लाह। वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये उस तरह तड़पते नहीं, ये हर वक्त शरीयत की हदें बयान करते रहते हैं, ये किसी को शेर भी नहीं कहने देते, ये प्यार भी नहीं करने देते, ये हर वक्त नुक्ते खींचते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा फतवे और सबसे ज्यादा हुदूद तो आला हजरत ने बयान किया, लेकिन जो अंदर का दर्द था ना उसे छुपा के रख नहीं सके, क्योंकि मुफ्ती का भी महबूब होता है, सरफ नाव पढ़ाने वाले का भी महबूब होता है, हाँ ताजर का भी महबूब होता है, सबका महबूब होता है। पता था हजरत सिद्दीक अकबर को कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज नहीं, फिर भी बार बार कहते थे हुजूर मेरा भी दिल करता है। तो आला हजरत ने मोहतात हो के इधर देखो यार मेरी तरफ, मैं अब क्या करूं, कैसा दस्तूर जुबां बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबां मेरी, ओ सुनो तो सही, जो मैं कह रहा हूं इसमें तो वैसे ही मोबाइल हाथ से गिर जाता है, आपने फिर भी पकड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं इसमें तो गिर जाता है, पकड़ा हुआ भी हो, छोड़ दो यार, सुनो क्या कह रहा हूं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए, गुलाम थे ना महबूब के, तो जब हुजूर के नक्शे खींचे, सीरत बयान की, तो वो जो फतवे लगाने वाले थे ना उनसे आला हजरत ने कह दिया कि चलो तुम नहीं ना बात आते। हालांकि आला हजरत ने खुद सजदा ताजीमी हराम है इस पर किताब लिखी है कि किसी को सजदा, एक तो है इबादत का सजदा, वो तो कुफर है, ताजीम के लिए करना हराम है, पूरी किताब लिखी। लेकिन जब बाज नहीं आए तो बोल पड़े, कहने लगे नहीं ना तुम बाज आते तो सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, जा जो उन्हें कर ले, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, मैं क्या करूं, प्यार है मुझे नबी पाक से, क्या करूं, किधर जाऊं। मदीना देखा, गुंबद खजरा देखा, वो जो पैसे जमा करके नहीं जाते गरीबों के बच्चे, जिनकी अगली टिकट बुक नहीं होती, जिनको पता होता है पता नहीं दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये उनकी तर्जुमानी करते हैं। आला हजरत कहते हैं पहली दफा गुंबद खजरा देखा तो तड़प गए, कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, लेकिन चूंकि मुत्तकी हूं
वकानु यत्तकून, तकवे पे अमल करना है, पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। उन्होंने तकवे का दरस दिया, एहतियात का दरस दिया, लेकिन मोहब्बत भी पूरी की। एक शायर उर्दू अदब के बड़े बेहतरीन थे, मेरा कॉलेज का जमाना था तो मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे कहा आपने आला हजरत बरेलवी को भी पढ़ा है? कहने लगे रज के पढ़ा है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उलमा जरूर तहकीक करें, पढ़े लिखे, लेकिन फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना बड़ी आलमी शख्सियत है। हर फन का आदमी फैजियाब होता है, हर फन का आदमी, वो रियाजी से दिलचस्पी रखता हो, वो फलसफे से दिलचस्पी रखता हो, वो मानी का आदमी हो, बदी का आदमी हो, इल्मुल कलाम का आदमी हो, वो उनसे फैज लेना चाहे ना तो पढ़े उनको। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तसल्ली देते हैं, तसल्ली। उनका तर्जमा जो कंजुल ईमान है ना, यानी एक तो ये है ना कि मैं मुरीद हूँ, अकीदतमंद हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, आप रख के देखें बाकी सारे तराजुम, आपको तफसीरों में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो तर्जमा आला हजरत बरेलवी करते हैं इतने खुलूस से, इतनी लिल्लाहियत से, बड़ी सारी चीजों से, वैसे ही इंसान बेनियाज हो जाता है। हर फन के आदमी को फादर बरेलवी ने तसल्ली दी, लेकिन उनका असल कमाल ये था कि वो हुजूर के आशिक सादिक, नबी पाक से प्यार करना उनका वजीफा था। हमारे एक बहुत बड़े शेख हुए हैं अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब रहमतुल्लाह, उलमा जानते हैं, उनकी एक किताब पर ना एक अदीब थे मरहूम खुर्शीद अहमद गिलानी, उन्होंने तबसरा लिखा। कहने लगे समझ नहीं आती, ये सारा दिन सरफ नव पढ़ाने वाला मौलवी जब लिखने बैठता है तो इतना अदबी कैसे लिखता है, समझ नहीं आती। आला हजरत सारा दिन फतवे देते, लेकिन रात को जब वो बैठते थे हुजूर की तारीफ करने तो समझ नहीं आती थी कि बड़े बड़े शोरा दम बखुद रह जाते, और शेर के अंदर शेरी हुस्न भी, अदबी जाज़बियत भी और इल्मी वकार भी। आप जरा अंदाज देखिए बात करने का, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अच्छा, मेरे गुंचे खिला दिए भी होता तो शायद कोई शायर कहता कि मैंने जोड़ शोर मिला लिया है, लेकिन मेरे गुंचे नहीं, दिल के गुंचे। बड़े सोने कपड़े पहने हो, अंदर से बंदा उदास हो ना तो लुत्फ नहीं आता। आला हज़रत बरेलवी आप देखें, मैंने कहा तसव्वुफ की चाशनी देखे, फरमाते उनकी महक ने, यानी खाली हुजूर की खुशबू मिले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और दुनिया कहती है मैं बस जाऊं, आबाद हो जाऊं, कहते हैं बस हुजूर का अगर फेरा हो जाए ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बड़े बड़े लोग आजकल टेंशन में हैं, डिप्रेशन बहुत, एंजाइटी बहुत, उसकी वजह यह है खबरें बहुत है, ज्यादा सोचना बहुत है, निकल बहुत दूर जाते हैं। आला हजरत ने हल बताया, फरमाते हैं गम जिस तरह का मर्जी हो और बंदा जो मर्जी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सादा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, गम कोई हो, बंदा कोई हो, अगर बड़ी तकलीफ हो ना तो मेरे हुजूर को याद करें। ये तकरीर नहीं है, और सुनो जवानों, तकरीर नहीं है, ये आज तजर्बा करके देखना। आप बड़े परेशान हैं तो रात दुरूद व सलाम पढ़ के सो जाओ, आप परेशान हैं तो हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र पढ़ के सो जाओ। हुजूर माफ कर दिया करते थे, ये बाप पढ़ के सो जाओ। नबी पाक नवाज दिया करते थे, ये चैप्टर सीरत का पढ़ के सुन के सो जाओ। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं, किसी माहिर नफ्सियात के सेशन लेने की जरूरत नहीं, सरकार को पढ़ो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, बंदा कोई हो, गम कोई हो, यानी कारोबारी टेंशन हो, घर की हो, कोई हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, वो जब याद आ गए हैं सब। मेरे दोस्त वापिस आना पड़ेगा, हुजूर की बारगाह तक आना पड़ेगा। उम्मत के मसाइल का एक ही हल है, दरवाजा रसूल। हमने ना बहुत सारे निज़ाम पढ़े हैं, ये सदारती निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम है, ये डिक्टेटरशिप है, ये फलाना है, ये फलाना है, लेकिन निज़ाम एक ही है दुनिया में जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये निज़ाम घर में आए, दीनी तंजीमों में आए, हमारे मदारस में, मसाजिद में सही तौर पे आए, हम उसके पाबंद हों। जो वज़ादारी हुजूर का निज़ाम हमें सिखाता है, जो नज़्म ज़ब्त सिखाता है, अमीर की फर्मा बरदारी सिखाता है,
ہم بچ جائیں گے. باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا. لمبا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ حضور سے فیض لے کے چلے، سیرت پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے. حضور ہم نے بڑے نظام دیکھ لیے. ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے حضور، یہ تھوڑی بہت روشنی ہے، اس سے گزارا نہیں چلے گا. بات کو ختم کرتا ہوں. دو باتیں کبھی نہ بھولنا، ان کو یاد رکھنا. دین میں ادب کے بغیر ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی. آپ بادب ہیں تو سب کچھ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر دل کو سنبھال کے دروازہ رسول تک نہیں نہ پہنچاؤ گے تو یہ بھٹک جائے گا. یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. آخر ادارہ حاضہ آپ کے علم میں ہے کہ بڑی دیر سے یہاں پر اس شہر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ اور ادارے بن گئے. ہمارے علامہ مفتی سید ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی آپ کا ادارہ، علامہ مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب آپ کا ادارہ، بہت سارے علماء بیٹھے جن کے ادارہ جات چل رہے ہیں. یہاں بچوں کی دستار ہے. ان کی خواہش ہے کہ پیر صاحب مبارک دست لگائیں اور یہ آپ دست پاک سے ان کی دستار فرما دیں. تو ایک تو یہ ہوگا، آپ نے بالکل تحمل کے ساتھ بیٹھنا ہے. دوسرا اسٹیج کا رخ آپ نے، جتنے کھڑے ہیں بھائی ادھر پیچھے چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کوئی نہ کھڑو یہاں. آپ کی اگر آواز آئی نا دوبارہ چلے جائیں سائڈ پہ. یہ پچھلی مرتبہ بھی یہیں سے باتیں بند نہیں ہوئی تھی. بیٹھ جائیں نیچے. میں نے بار بار کہا تھا یہاں کوئی نہ ہے. بیٹھ جائیں بھی، تھوڑا مہربانی فرمائیں، آپ شفقت کریں یار. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. تو ادھر سے کسی کی اب آواز نہیں آنی چاہیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے حضرت پیر صاحب کا ہی جو پیغام ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں. دو گزارشات صرف میں کرتا ہوں، اس کے بعد دستار اور اس کے بعد پھر پیر صاحب کا کھلا ٹائم. جب تک آپ کا جی چاہے آپ ملفوظات سے نوازیں گے ہمیں. سب سے پہلی بات یہ سماعت فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس چیز نے بنایا ہے. یہ بڑی سننے والی بات ہوگی اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے سارے احباب. یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، محبوب کی نگاہ ہے، عنایت ہے. اور یہ مقدروں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کو اس مقام بلند پر پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کثیر الجہات. آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی جو کہ ایک دینی پیشوا اور رہنما میں ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل، موبائلوں سے نکل کے بات سنیے گا ذرا، سننے والی بات ہے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حافظ تو وہ عالم نہیں، ایک ہوتا ہے عالم تو وہ مقرر نہیں، ایک مقرر ہے تو وہ مفکر نہیں، مفکر ہے تو لیڈر نہیں، اور اگر لیڈر ہے تو وہ مدرس نہیں، مدرس ہے تو وہ پیر نہیں، اگر پیر ہے تو وہ بہترین قاری نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر راہ رشد و ہدایت بھی ہیں. آپ بہترین باپ بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین امام بھی ہیں، اور بہترین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے سپاہی بھی ہیں، محافظ ختم نبوت بھی ہیں، محافظ ناموس صحابہ بھی ہیں، اور محافظ ناموس آل رسول بھی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، ذرا جوانوں والی سنائی جائے نا. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خصوصیت، یعنی آپ کثیر الجہات، ہمہ جہت شخصیت جس کو کہتے ہیں، آپ وہ ہیں. اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے اس پڑھے لکھے دور میں بھی جب لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں نا کہ تسی نبی پاک نو حضرت کہندے ہو، صحابہ نو حضرت کہندے ہو، انہاں نو اعلیٰ حضرت کہندے ہو، تو میں کہا دسو پھر انہاں بندیاں نو بندہ کیویں سمجھاوے ہو؟ اللہ دیو بندیو، خدا تانوں مدینے لے جائے تے ہر سال لے جائے. یہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ تھے ان میں اعلیٰ حضرت ہیں. رہ گئی بات صحابہ کی تو ان کو صحابی کہنا ہی اتنی بڑی ڈگری ہے. زمانے کا کوئی حضرت اور کوئی ڈگری صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جیسا بھی ہو وہ جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کرے، ایمان نہ لے آئے، تو صحابی بن ہی نہیں سکتا. اس واسطے چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیا کرے. آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑی باتوں پر توجہ دیا کرے. پہلی بات جس نے اعلیٰ حضرت بنایا کہ آپ ہمہ جہت شخصیت ہے، کوئی کمی اللہ نے عطا نہیں فرمائی. دوسری چیز جس نے آپ کو اعلیٰ حضرت بنایا، ذرا غور سے سنیں میرے سارے دوست احباب، علماء سے دعائیں لینی ہے. آپ کی خدمت میں پیغام عرض کر رہا ہوں
उलमा फरमाते हैं पिछले जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, किसी ने एक फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का और किसी ने 5 का, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो मुबारक हस्ती हैं जिनके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे, लेकिन इस गौसे आजम के नायब ने तने तनहा उनका सर कलम कर दिया और मुस्तफा जाने रहमत का झंडा बुलंद फरमा दिया। ये है आला, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है कि आपने इतने फितनों का मुकाबला करके इस दीन मदीन की जो रूह थी उसके ऊपर जितना पड़ा हुआ गर्दो गुबार था और ये तशरीहातें गलत थी उनको दूर करके दीन सहीहा और पैगाम सहीहा लोगों के सामने वाज़े फरमाया। ये दूसरी चीज थी। अगर आप तवज्जो करें तो तीसरी गुजारिश भी अर्ज करूं आपकी मुबारक खिदमत के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा। जिसने आला हजरत को आला हजरत बनाया है, उलमा फरमाते हैं, अब ये बात बड़ी सुनने वाली होगी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, बेटा थोड़ा पीछे हो जाए, ओ पुत्र ये साफी बैठे हैं तो इनका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी है, हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पुत्र, ओ कूलर आ रहा पीछे हो जा, पीछे पुत्र आजो आजो शाबाश को थोड़ा जी भी जियारत पुत्र तुसी भी थोड़ा जी अगर इंज हो जाओ ना तो होता है पीरां दी भी जियारत करनी है ना, है माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हां दा तसेरा है सारा, ये पीर साहब के बड़े भाई हैं जी और बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह। लो जी तीसरी बात और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब भी कुरान और हदीस को बयान किया, आला हजरत क्यों है आप, मैं बात ये बता रहा हूं किस चीज ने आला हजरत बनाया। आपने जो मुस्तदल ठहराया आपकी बात का, वो या कुरान को या हदीस को, आपने तारीख में छलांग नहीं लगाई, ये याद रखिए। चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला आपने जब इसी चीज को मुस्तदल ठहराया, यही वजह है कि मेरे रजा ने जो लिख दिया वही लिख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आला हजरत फरमाए पहले मैंने ये लिखा था तो अब ये लिख रहा हूं, अब मैं रुजू कर रहा हूं, पहले ये मेरी ताकीक थी अब ये थी। अहमद रजा ने जो एक मर्तबा लिख दिया, अल्लाह की रजा से वही हुआ जो अहमद रजा ने लिखा था। समझ आ रही है? इसलिए आला हजरत है मुकम्मल मुताला करके फिर आप उस बात को आगे वाज़े बयान फरमाया करते थे। और अब आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया, ये सुनिएगा जरा, वो बनाया है राबते ने। बहुत खूब। अरे पीर साहब मैं आपसे दुआ लेने के लिए रब, हालांकि इस मामले में मैं खुद सोचता हूं और हमारे कई उलमा मशाइख इसमें सोचते हैं राबता होना चाहिए। ये जो आला, आप फतावा शरीफ पढ़ने में लंबी बात नहीं करता, आला हजरत का फतावा शरीफ पढ़े, डीजी खान के फतवे उसमें मौजूद हैं, बहावलपुर के उसमें मौजूद हैं, नवाबों के उसमें हैं, सेठों के उसमें हैं, खानों के उसमें हैं, सादात के उसमें हैं, उलमा के उसमें हैं, मखर शरीफ के उसमें हैं, ये गोलना शरीफ इसके हैं। अमेरिका, अफ्रीका, बंगाल, अरब, आजम, पूरी दुनिया से लोगों ने अहमद रजा से जब राबता किया है तो मेरे अहमद रजा ने फिर ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं, नहीं, उन्होंने भी पूरा बैक रिस्पॉन्स दिया। इस राबते ने भी अहमद रजा को अहमद रजा बनाया है। इसलिए मैं जुमला उलमा मशाइख और बिलखुसूस तोबा टेक सिंह के मेरे जितने चमकती जबीनों वाले, मैं इनसे गुजारिश करूंगा राब्ता आपस में रखा करें। हारमी ने एक जगह पे बह के आप चाय पी लइए ना, इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर ना शुगर ना निकी मोटियां बीमारियां, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अच्छा ये तुसी आखो कि भी ये अपने उलमा नूं आखी जांदा है, सजना और जिन्ने स्टूडेंट बैठे हो, ताजर बैठे हो, साडे टोबे दे आशको, तुसी भी अपने उलमा नाल राब्ता रखिया करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ओके ओके आ चुके ने, किते पहले नहीं लगे बैठे, समझ आ रही है? उलमा से राब्ता रखें, मशाइख से राब्ता रहें और सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल, फिक्रे रजा वाले। और ये देखो कैसा गुलशन सजा हुआ है, जितने आए हैं अल्लाह तुम्हें भी सलामतियां अता फरमाए। और आज पीर साहब ने मेहरबानी फरमाई, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अगर मैं कहूं कि तायराना नजर डालें, 4 साल की उम्र अक्दसी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जब आपने कुरान मजीद नाजरा पढ़ा, 6 साल की उम्र थी आला हजरत की जब आपने जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई, तकरीर का दौरानिया 2 घंटे था, बड़ी बड़ी आपने उलझी हुई गुत्थियां सुलझा दी। और 8 साल की उम्र थी जब आपने अरबी के अंदर पहली किताब, वो भी फन पर, हिदायतुन नहब, उसकी शरह को लिखा है। बाकी किताब लिखना आसान है, फन पर लिखना मुश्किल होता है, लेकिन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अच्छा यही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आपकी अभी 13.25 साल के करीब उम्र है, आपने पहला फतवा लिखा, वो भी रज़ात के मौजू पर, और वो भी बिल्कुल सही और सवाब और बरहक लिखा। जब आपकी 19 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसमें आपका निकाह होता है, आपकी 21 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसके अंदर आपको सिलसिला इजाजत अता किया जाता है। उसके बाद आपका फिर ये जो सिलसिला बैअत है वो जुड़ता है। 23 साल की उम्र के अंदर आप पहला हज करते हैं,
27 साल की उम्र में पहली फारसी की किताब लिखते हैं। जब आपकी 30 साल के करीब उम्र होती है, एक रिवायत 31 साल, बैठ जाइए मेरी जान, एक मिनट बैठिए, मैं